A very good morning, everyone. Once again, welcome back to all honorable guests in Mahamanthan Live today. And I hope you all are safe with your family in this pandemic time. I am Saurabh Shukla, once again back with Mahamanthan Live session number 8, Effective Parenting in COVID-19 with our honorable guest today. And first of all, I would like to say thanks to all our continuous viewers of entire country for watching all our sessions live. And Mahamanthan Live is one of the way by which we can share our respectful thoughts, our thought process with the entire country, with entire parents of country, entire kids, so many educators and the respective persons of country. Dear viewers, today's topic is very, very important because it's associated and linked with the parents of entire country facing few challenges during COVID-19 with their kids. Thus, we are here to discuss about effective parenting in COVID-19. But before to start this, I would like to welcome the honorable guest, Mr. Arindam Lahiri, sir, Gagan Deep Sharma, sir, and on behalf of Mahamanthan, I can only say tons of thanks, Gagan sir and Arindam sir, for giving your valuable time for this important topic. एंड एज यू ऑल नो अरिंदम सर हम सब के मेंटोर भी हैं, हम सब के एक आइडियल हैं जिन्होंने हमें टीचिंग सिखाई है, हमें एक लीडरशिप सिखाई है कि एक्चुअल में वो क्या होती है. एंड आई कैन ओनली से ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन ऑफ एंटायर कंट्री. जो भी व्यूवर इस वक्त हमारा सेशन देख रहे हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अरिंदम सर इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जिनको हमने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फील किया है कि एक पर्सनैलिटी क्या होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है और एक स्किल क्या होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अरिंदम सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम हियर इन दिस महामंथन लाइफ. आई कैन ओनली से कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला सर, और वो हमारे लिए इस महामंथन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? माय प्लेजर. थैंक यू सौरभ सर. दिस हैज बीन अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म दैट यू क्रिएटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू सर, थैंक यू. एंड गगन सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से आज ये टाइम निकाला. गगन सर इज ऑल्सो अवर को फाउंडर ऑफ महामंथन लाइव, तो आपके लिए बड़ा आभारी हूँ. और गगन सर हमारे हर एक सेशन में आकर के हमेशा हमसे मतलब बहुत ही अच्छी चीजें डिस्कस करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट्स हमसे डिस्कस करते हैं. तो जस्ट प्रदीप सर भी हमारे ज्वाइन कर रहे हैं सेशन. जस्ट हेलो प्रदीप सर. हेलो एवरीवन. हेलो प्रदीप सर. गुड मॉर्निंग सर. कैसे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग. बस जी बढ़िया बढ़िया, सब ठीक ठाक. अच्छा, so we have Pradeep Singh also, sir. So Pradeep Singh sir is one of the favorite educator in national. You can say he is one of the best educator in NEET department of an academy, and he is one of the favorite educator in NEET wing, and I can only say one of the famous personality of biology wing in the entire country. Thank you, sir. And thank you, Pradeep sir. You are no less than. You are no less than any other biology educator of the country. So thank you, Pradeep sir. आपने busy schedule में आए टाइम निकाला और आपके लिए काफी मैं शुक्रिया देना चाहूंगा. एंड बिफोर टू स्टार्ट दैट, यहाँ पर मैं अरिंदम सर के लिए कुछ थोड़ा समय शेयर करना चाहूंगा. मैं अपने सारे व्यूवर्स को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अरिंदम लहरी सर. सो जस्ट गिव मी. I hope this slide is visible for all. Yes, sir. Yes. So Arindam sir, he is one of the passionate professional with career spanning of 29 years. And you can say the initial 10 years was spent in the manufacturing sector, followed by the 19 years of experience across all domains of education and training. He started his career with Maruti Udyog, received global exposure at Honeywell Incorporation USA, and had an entrepreneurial stint as director and co-founder at Career Launcher India, now called CL Educate also. His last assignment was with Education Division of HT Media, and at present, he serves as a member, DGT Apex Committee, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. Governing board member at Symbiosis Skills and Professional University, Pune. Member, Faculty Development Committee, Society for Automotive Engineers, SAE also. He is also one of the senior in the skill development at International Center for Automotive, ICAT, Haryana. And he is also a life member of National HRT Network, NHRDN, and Indian Institute of Material Management. Lahiri sir has done his bachelor's in mechanical engineering from Jadavpur University
and completed his postgraduate diploma in marketing and operations from IIM Lucknow also. So once again, a very good morning Arindam sir, Gagan sir and Pradeep sir. आप सब ने अपने बिजी शेड्यूल में आज इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के लिए टाइम निकाला एंड डेफिनेटली आज का जो हमारा सेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया के जितने भी पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स के लिए बहुत सारे कुछ चैलेंजेस निकल करके आए हैं इन दिस पैंडेमिक टाइम. सो एज वी डिस्कस, प्रदीप सर जो हमारे नेशनल एजुकेटर यहाँ पर हैं, अपने बिजी शेड्यूल में उन्होंने संडे को आज ये टाइम निकाला. वंस अगेन थैंक्स सर. एंड गगन सर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैथ्स एजुकेटर ऑफ दिल्ली एनसीआर, वो भी आज यहाँ पर है. तो बिफोर टू स्टार्ट दिस डिस्कशन, मैं अरिंदम सर से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. आई एम श्योर आई हैव द लिबर्टी टू आस्क दिस क्वेश्चन अरिंदम सर. Please go ahead. Arindam sir, how has the pandemic affected the challenges of the parents? In your opinion, what's your sir suggestion? In my opinion, parenting has always been a very fascinating subject for me. Both my own experience as a parent and because I have been involved in education training, so I have come across and met so many different parents with so many different challenges every time I have met them. So parenting अपने आप में एक इतना बड़ा चैलेंज है और उसके साथ एक नया फैक्टर जो ऐड हो गया, which is the pandemic and COVID-19. और आज की डेट में जो which is the biggest impact that is having COVID-19 is having is on the kids, on the school going children. उनके लिए वैक्सीन अभी भी फॉर्मल नहीं हुआ है. One, of course, people are talking about a vaccine for people aged, children aged 12 plus, but उसके नीचे अभी वैक्सीन का कोई visibility नहीं है. Okay. And parents therefore are also becoming very concerned and protective, especially from a health perspective. Now, at the same time, there is this huge, factor that one must remember as a parent, as an educator, and as all of us as a part of the society. बचपन के दिन वापस नहीं आएंगे. Correct. And as youngsters, as school-going children, the experience of going to the school is so much important to an individual, and that has been closed for almost now more than a year and a half, let's say, so far, and probably going to be almost about 2 years. Therefore, this has added a level of complexity to parenting, which nobody was prepared for. I mean, I don't think any one of us were prepared for कि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे as a parent. So everybody is trying to figure out कि क्या करें, because उनके अपने challenges हैं as a parent, because there are people who have lost their jobs, they are in financial distress, there are health issues with parents, health issues in the family, and so many different aspects. The other thing that has happened in the corporate world is कि work from home के चक्कर में क्या हो गया कि वैसे तो आप घर पे हो, you are at home, but you are not at home because you are actually working. Now earlier, at least when you are working from office, you were not at home and you were thinking about office, but when you are at home, you were thinking about home. But now all the time you are at home, but at the same time you are thinking about office. So that's the added complexity for each individual as a parent. So that's why I'm saying that this is such a complex subject, and there are no black and white rules कि आपको मैं बता दूं, गिना दूं कि ये 10 चीजें करिए सब कुछ ठीक हो जाएगा. ऐसा भी नहीं है. So there is a lot of experimentation and a lot of learning from each other that is very important here. And I think this is a very good platform where I actually was very keen to talk about this because this is very close to my heart. And I see a lot of young parents, all of you have your own children that you are grappling with. And you know exactly what I'm talking about because,
especially those who have younger kids, let's say 12 years below. थोड़े से जो एडवांस किड्स होते हैं, एडोलेसेंट किड्स होते हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, बट उनके प्रॉब्लम्स थोड़ा अलग है. बट यंगर किड्स, उनके प्रॉब्लम्स एक और है. So we need to kind of highlight all of this. Okay, Pradeep sir, being as a parent, as a good father, have you faced any major challenge during pandemic with your kid? चैलेंजेस तो है ही है पैंडेमिक में. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अगर मैं किसी से बात भी करता हूं एज अ पेरेंट, तो हर एक पेरेंट के किड्स की एज ग्रुप अलग अलग है जी. तो जैसे कि अरिंदम सर ने कहा कि एवरीवन हैज एन इंडिविजुअल सेट ऑफ चैलेंजेस. किसी का बच्चा छोटा है तो दूसरे चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा बच्चा बड़ा है तो दूसरे चैलेंजेस हैं, और अपने साथ भी चैलेंजेस हैं क्योंकि खुद को भी एडजस्ट करना है जी. तो सबसे बड़ी बात तो ये देखता हूँ कि खुद को एडजस्ट करना भी एक चैलेंज है कि ऑफिस का वर्क और घर के वर्क के साथ अपने आप को, मतलब ये जो मेंटल स्विच है जी, कि कब ऑफिस के साथ एसोसिएटेड है, ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, कब घर का वर्क कर रहे हैं, दिस बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग. हालांकि इसमें एक चीज थोड़ा सा जो मैंने ऑब्जर्व किया वो देख करके ये आया कि किड्स आर मोर इमेजिनेटिव. अगर उनको हम किसी ऐसे काम में कुछ टारगेट दे दें कि बच्चे आप इसमें कुछ करिए, सो दे कैन थिंक ऑफ, आई मीन, बेटर देन व्हाट वी कैन थिंक. ये तो मैंने देखा. तो उनको अगर थोड़ा सा एंगेजमेंट मिल जाता है सो दे कैन बिल्ड. जबकि हमारे लिए चैलेंजेस होता है, वी आर सो यूज्ड टू गोइंग आउटसाइड एट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, ऑफिस जा रहे हैं, कुछ हो रहा है. सो करेक्ट सर. गगन सर, एज अ फादर, आपकी भी एक छोटी सी बिटिया है और उस डॉटर के भी कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे इस पूरे 2 साल में. आई थिंक द फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड इन जनवरी 2020 इन इंडिया. द फर्स्ट पैंडेमिक वाज रिपोर्टेड इन जनवरी 2020 और मार्च में आते आते पूरे देश में लॉकडाउन लगा और हमारे सारे स्कूल्स लगातार बंद हो गए. बच्चे लगातार 2 साल से स्कूल का उनका कोई नाता नहीं है. ऑफलाइन के साथ साथ उनकी सब छूट करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई. तो एज अ फादर और एज एन एजुकेटर, आपने कुछ पॉइंट्स को क्या वहां पे ऑब्जर्व किया जो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ चैलेंजिंग है और आपके लिए एज अ चैलेंजिंग है एज अ पेरेंट? यस सर, एक्चुअली जो मैं कहना चाहता हूँ इस मामले में, इस कोरोना टाइम्स में, कि अगर हम कोरोना से पहले देखें, कोरोना बिफोर कोरोना, कि हमें इतना समय नहीं मिल पाता था बच्चों के साथ वक्त गुजारने को जी. बट अब तो मैं 24 आवर फुल टाइम पापा बना हुआ हूँ और क्या कहते हैं, बच्चों के साथ जो मैंने नोटिस किया कि अब ऐसे में हम बच्चों को ना करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पूर्वा आपने ये मोबाइल ज्यादा नहीं देखना, ये कंप्यूटर ज्यादा नहीं देखना. सो हम एक चीज जो मिस कर रहे हैं बच्चों के साथ वो है कनेक्ट. जी. कि हम बच्चों को करेक्ट करने में लगे हुए हैं, बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते. तो कनेक्ट कैसे हम बच्चों के साथ करें? सबसे पहले तो हम बच्चों की सुने. फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउ देम टू स्पीक, है ना, कि वो उनकी हम पूरी बात सुनते नहीं है और हम उन्हें बीच में काट कर उनको करेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. Okay. इससे ना बच्चा, मुझे लगता है, इरिटेट हो जाता है. वो हम जो उनसे समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ रहा क्योंकि हम उन्हें करेक्ट कर रहे हैं. अगर हम उनके साथ उनकी पूरी बातों को सुने ध्यान से, हम उसको फिर अगर हम कनेक्ट करके अगर हम करेक्ट करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा हमारी बात समझेंगे. तो फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट, अकॉर्डिंग टू मी. पहले हम कनेक्ट करें बच्चों से, फिर उसके साथ करें. अब जैसे हमारी जो आजकल की माएँ होती हैं, आप देखिए फादर में और माओ में थोड़ा सा, मदर्स में डिफरेंस है. मदर जो होती है वो पहले बच्चे से कनेक्ट करती है फिर उसको करेक्ट करती है, इसलिए माताओं के साथ बच्चों का ज्यादा कनेक्शन होता है. अगर हम फादर की बात करें, फादर हमेशा कहेगा नहीं ये काम नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, वो करेक्ट करते रहते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते. तो इसलिए पापा से थोड़ी दूरी बनी रहती है बच्चों की. तो मैंने ये चीज नोटिस करी इस कोरोना के अंदर कि पहले स्टार्टिंग में मैंने अपनी पूर्वा को बहुत करेक्ट किया, नहीं ये गलत है, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा. सो वो मुझे लगा कि मैंने कुछ दूरी बना ली अपने बच्चे से क्योंकि वो बड़ी इरिटेट हो जाती है. तो फिर बाद में मैंने देखा कि पहले उनके साथ कनेक्ट करें, उनकी सुन लो वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम उसको करेक्ट करें तो डेफिनेटली बच्चा बहुत जल्दी हमसे कनेक्ट भी हो पाता है और हमारी बात को सीख भी लेता है. गॉट इट. अरिंदम सर, मुझे आज भी याद है, फ्यू इयर्स बैक, आई थिंक 4 years बैक, आप सबने हमसे बोला था कि द फ्यूचर इज ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया. उस वक्त हमें भी लगता था कि इतने जल्दी इतना आसान नहीं है इंडिया में, इतना कैसे ऑफलाइन को हम बीट कर देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है. एंड नाउ सर, क्या मैं बोल सकता हूँ कि कैन वी से द फ्यूचर इज एक्चुअली ऑनलाइन इन इंडिया?
कैन वी से द ऑनलाइन एजुकेशन, अब हम ये पैंडेमिक में क्या प्रूव कर चुके हैं कि फ्यूचर क्या हमारा यही है बच्चों के लिए? आपका सर कुछ सजेशन और? That's what I say, that it's not the future, it's the present. Because आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन है. If I am going to talk about the future, yes, I am going to talk about an immersive, let's say, human-computer interaction-based learning environment, where you could be virtually be present in a classroom situation, where a student might feel that you are physically present in that classroom. And there are technologies that are available. So obviously, the future holds so many new things. What we are saying, online education today, is really speaking, I would just say that yes, it is online, of course. Nobody can debate it. But what we are trying to do right now is kind of only teaching online. We are Okay. not schooling students online. Okay. Teaching और schooling में फर्क होता है. जी. फर्क ये होता है कि teaching talks about only one direction, which is the academic development of a child, while schooling talks about a whole 360-degree development of a child, where there are two other very critical elements which a child must go through. Right. One is something related to motor skills that we talk about, or physical Right. development, Right. which is where we have physical education classes, sports, etc., etc. The other part is the development of the left brain, which is on the creative side, talking about art and fine arts, arts appreciation, engagement with those elements, Right. other than your typical, the rational side of the brain, essentially, which is your academic side of the brain. Now, it's a very important element that we are still trying to look at solutions which helps us do online teaching. Yes. Online, therefore I say that I would differ, that we are not doing online learning, we are doing online teaching. Online learning will happen when we integrate a 360-degree development of the child into the entire space. And I think that's something is not very, very focused as of now. Even the schools that I see are typically very keen that somehow they have to get rid of having done the syllabus. Right. And the teaching tick mark is happening. But development of the child is the objective. The objective of a school is not to teach a child. The objective of a school is to develop a child for the future, make him a responsible citizen, make him a good human being, with appreciation of the larger world, build up value systems. Correct. And therefore, I see that the parenting again has another layer of complexity, that how do I as a parent fill that gap that school is leaving right now? Correct. And if I don't do that, I hear a lot of parents today talking about, "Arey, hamare bacche sara online class kar rahe, everything is fine." But the fact of the matter is that if they are not going out and playing, if they are not socializing, if they are not engaged in any fine arts, I think the child development is going to have a very deformed development. I mean, I'm just Correct. using the word deformed in absence of any other word, but probably one directional development, which is not good, which is not good at all, for young kids to develop as a good citizen.
I mean, all of us, all of you have been, art skill subject teachers. I have also been a subject teacher. So we know that we kind of stress a lot more that have I taught my biology well? Have I taught my maths well? Have I taught my social sciences well? Of course, yeah, that's my full responsibility. You know, just give you one small example and I'll close this conversation. In a school, typically what happens is that you will sometimes have an off period, you will interact with a few children on a small group or one-to-one or whatever it is. Now, how much do we mimic that in an online scenario? Is there something like an office hours, which I do beyond my teaching hours, allow kids who have some other interests, some other challenges? Sometimes it's non-academic issues that are bothering them. Do we engage in those conversations? Now, if we are not, as a teacher, the responsibility obviously falls on the parents to ensure that they do pick up that thread, and also parents to connect to the teachers and explain that these are some of the gaps that I am noticing in my child. Can you take additional interest in my child? It's just the way the physical world also used to work. It's just that कि physical world में हम naturally एक दूसरे से मिलते थे, बच्चों से भी मिलते थे, पेरेंट्स से भी मिलते थे. यहाँ पे वो मिलना नहीं होता है. हम एक आते हैं एक शेड्यूल क्लास में, ऑन किया हमने जूम या व्हाटएवर लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्लास हो गई 1 घंटे की, खत्म हो गई, बंद करो, done. On both sides you are saying that it is done, but that's not how development happens. Development happens with a continuous interaction. So प्रदीप सर, yeah, I think सर बहुत important है जो आपने ये suggestion दिया है सर, बताया. Actually ये हो रहा है सर, ये feel हम करते हैं सर. प्रदीप सर, when you are teaching online, right, to the country students, something specific which you observed as a challenge during online education, जो स्पार्क वो चाहिए होता है, जो आपने कभी फील किया हो कि उस चीज की कमी आपको महसूस हुई जो ऑनलाइन में नहीं पूरा कर पा रहे हैं? एनीथिंग एल्स? Sir, truly speaking, during this pandemic specifically, pandemic से पहले भी मैंने ऑनलाइन टीचिंग किया और पैंडेमिक के ड्यूरेशन में भी किया. I have observed one thing, at least the students were always eager to join the class. Eagerness बढ़ा है बच्चों का कि there is at least someone who is going to talk differently, because they are bored with the general stuff. Staying at home always, that brings a lot of pressure, I believe, in the minds of the kids. And provided in these times when it is still not clear when the world is going to be again the free way as it used to be, I doubt. तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत है सर कि मतलब बच्चों को इन अ वे ठीक तो लग रहा है, बट जैसे अभिनेता ने कहा कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता जी, ओवरऑल डेवलपमेंट. तो हालांकि इफ आई सी द चेंजेस, तो मुझे तो ये दिख रहा है कि बच्चों का एंगेजमेंट जो बढ़ा है, इनफैक्ट वेव 1 आई और वेव 2 आई तब से लेकर अब तक बच्चों का इंटरेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बोरियत भी आ गई है क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ स्टफ होता चल रहा है. टीचिंग इज वन एस्पेक्ट, जैसे कि सर ने भी कहा, दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, एक एक्सिस हम कह सकते हैं फुलफिल, बट टोटल 360 डिग्री का वो नहीं हो रहा. अच्छा, यहाँ पर आज चूंकि डिस्कशन हो रहा है, रिंदन सर भी आए हुए हैं और हम सब हैं, तो मेरे माइंड में एक प्रश्न है. जैसे रिंदन सर ने अभी कहा कि we were not prepared actually for this pandemic situation, no one was prepared, but having said this, अब ये पिछले 1.5 सालों में हमारी कुछ जो है ऑब्जर्वेशन भी बढ़ी है, हमारी कुछ आदत भी पड़ गई है. So what shall we now do to be prepared? कल को मान लीजिए खुलता है या जिस तरह से भी होगा, या बच्चों में जो लैग हुआ, इसको कैसे ओवरकम करेंगे? What should be the right direction thought? क्योंकि अभी तो हमें वक्त मिल गया है कुछ सीखने का, समझने का, ऑब्जर्व करने का, तो इट्स बेटर दैट वी स्टार्ट थिंकिंग प्रोग्रेसिव फॉर द फ्यूचर आल्सो. तो इसमें क्या कहना है हरिंदर? I think it's a very good point to be discussed, because how do we prepare for the future is always the most important point to kind of look at. See, जैसे आप सब लोगों ने भी शायद रियलाइज करना शुरू कर दिया कि even when the pandemic starts getting much more under control,
पैंडेमिक से एंडेमिक हो गया या it's just another disease भी हो जाएगा at some point in time in future. But my sense is that with this experience, the world will not be the same again. You know, in the sense that since we have gotten used to many of the things in which we are operating, you know, if you have the option कि आप घर बैठे सामान मंगवा सकते हो या खाना ऐसे ही मंगवा सकते हो, आपको एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है. Maybe you will still go, but the frequency of that will be very less. You know. Correct. Similarly, on a school format, also today my context will slowly start becoming is that schools which think about you know how the future of education is going to be are the ones who will survive for the future. In fact, you know, very interesting thought that there's a global platform that has recently been created and supported by UN, where there are experts from around the globe who are deliberating specifically on the future of school education specifically that they are talking about. And in most of the conversations that whatever I have been part of, I think everyone is very clear that there will be a blending of physical schools versus the digital schools going forward also, because there are certain elements which are better done on the digital platform, because the digital platform also has its own advantages of doing things. जैसे कि क्लास हो जाता है, एक बच्चे को क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, he can't rewind that class and go through it time and again and trying to you know, enhance their learning ability, learning from that class. आज की डेट में वो पॉसिबल है because each and everything is getting recorded and each and everything you can just go back and refer. कि क्या हुआ था, क्या डिस्कशन हुआ था, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी, ये सारे आपको आराम से अवेलेबल हो जाता है. उसके एक बहुत इम्पोर्टेंट एडवांटेज है when you are going through. In terms of preparation for the future, the only thing is that the future is going to become more and more uncertain. You know, not only the pandemic, I think climate change is real now. If you look at the frequency of, you know, typhoon that is happening, or you know, all of Europe has been flooded. आप लोग और हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो कितनी बार हमने सुना कि यूरोप में फ्लड्स हुई है. नहीं सुना होगा, once in a while maybe हुआ हो. But now almost all countries are facing regular floods there in Europe. अब ये जो natural disasters होगा, this will also impact our schooling system. Correct. It will also impact your digital connectivity as such. You know. Now मान लीजिए कि आपके लोकेशन पे एक टाइफून हो गया, आप सडनली बोला कि स्कूल तो जा ही नहीं सकते हैं, ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि internet connection or yeah, power, yeah, whatever it is. Now that may range from maybe a couple of days to even sometimes a week, 10 days, depending on the severity of what is happening. Now, how do you prepare young minds? You know, see, it is more about getting their minds prepared on different cases, different scenarios, and the young mind is very powerful. I think one of you have said that you know, they are very creative, they are very imaginative. Yes, they are. You know, it's as a parent, as a teacher, I think only our role is to facilitate that. जो आप गगन सर पहले एक बार अभी बता रहे थे कि you know, करेक्ट करने से पहले कनेक्ट करिए. Now I am saying कि करेक्ट भी करने की क्या जरूरत है? They are not going to be living in our world. They are going to be living in their world, and the future is going to be different from how we have lived our world. So how do I know what is correct as a parent? I have a very fundamental question to all the parents. कि आपको किसने स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी दे दिया कि आप जो कहेंगे वही करेक्ट है और बच्चे जो कहेंगे वो नहीं करेक्ट है? ये बिल्कुल नहीं है. अरिंदम सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा है, और आप प्रदीप सर ने और आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई सर, प्रदीप सर एंड अरिंदम सर, गगन सर, हमेशा एज अ टीचर मेरे दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि आज जिसके पास सुविधाएं हैं अरिंदम सर,
जिसके पास नेट की फैसिलिटी है वो तो चलिए हम सबसे पढ़ रहा है, कंट्री के टीचर्स के साथ ऑनलाइन ही पढ़ रहा है, स्कूल टीचर्स से ऑनलाइन पढ़ रहा है। सर हमारे फैमिली में बहुत से कुछ गवर्नमेंट टीचर्स हैं, लास्ट 2 सालों से सैलरी आ रही है, लास्ट 2 सालों से वो घर पे बैठे हैं, उसमें से 5 या 6 दिन स्कूल गए होंगे, गांवों के बच्चे आके पढ़ते हैं उनसे स्कूलों में, और आज 2 सालों में जिनके पास नेट की सुविधाएं नहीं है सर, 2 सालों में बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हो पाई। उन गरीब बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आगे चल के आईएएस बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, और वो भी पढ़ना चाहते हैं सर। हम ये नहीं कह सकते कि शहर के बच्चे पढ़ सकते हैं। आज सर अरिंदम सर उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है सर? क्या आज इतना सब टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वो बच्चे पढ़ने चाहते हैं लेकिन हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं एडुकेट कर पा रहे हैं? कंट्री के उन बच्चों को कैसे सपोर्ट दिया जाए सर? I think this digital divide is very real. Right. This is just like, there is a divide in the society in terms of, और हम लोगों ने इस चीज को बढ़ाते गए जी। This is all man-made. This is not how the world was conceived, let's say. But leaving aside the philosophical side of things, digital divide जो आज की डेट में है, I don't think it will go away. We can all wish away, but it will not go away easily. It is just that कि over a period of time, अगर हम सब लोग इसमें focused रहे, we are trying to also talk to many corporates in my current role where we are looking at how do we, because we deal in a large proportion with students coming in from underprivileged sections of the society. Right. How do we engage with these people? Lot of times I think the network access today has reasonably reached everywhere in the country. I mean, even if you go to a place in maybe far away Ladakh or whatever, I mean, I remember I was traveling to Northeast all of 2000, I mean, for about 15 days in 2017, when I had initially had a assumption most of the time मेरा phone नहीं चलेगा जी, but I was very pleasantly surprised for most part of it. I mean, except between certain distance when I was traveling from one location to another location, in some patches I did not have a good connection, but for most part of my travel I had the connection. So I think at a first layer the challenge is of availability of devices. Correct, sir. Availability of devices is something which a lot of corporates is now trying to fill it through the means of their CSR spending, where they are looking at giving away refurbished handsets, refurbished laptops, etc., which can actually go down, and these kids should be able to use some of them. There could also be a lot of government initiatives in the past, which is not very successful, but I think a lot of governments wanted to give free tablets or free laptops to students, etc., which did not happen much. But I think these are challenges which are going to be solved over a period of time, and I think we should be reasonably ready with it. The challenge will largely be in terms of making the learning still very effective for them. And I think vernacular, use of vernacular is going to become very key to education. आज के डेट में अगर NEP में देखें तो NEP भी ये बात कह रहे हैं कि English do not necessarily need to be a medium of instruction. Yes. And I think strongly, I believe that, in order to, democratize education, have access to education, a lot of people are actually moving away from this because they are not able to understand कि यार English में बाद में पढ़ना पड़ेगा, मेरे को तो नहीं समझ। जी, प्रदीप सर, 2017, 18, 19, 2019 तक एज अ पेरेंट हम बोलते थे कि भैया मोबाइल मत यूज करो बेटा, मोबाइल मत यूज करो, दिन भर मत बैठे रहो लैपटॉप के सामने, है ना, थोड़ा सा मूव करो, वॉक करो, थोड़ा सा खेलो, गेम्स खेलो, पढ़ाई करो। और आज प्रदीप सर, अरिंदम सर, गगन सर, मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स एटलीस्ट फॉर 8 to 9 hours।
तो सर हाउ डू वी मैनेज दिस सिचुएशन, बिकॉज आप भी जानते हो और हम सब जानते हैं कि एक बच्चा लगातार 8 से 9 घंटे एक स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, मोबाइल के सामने बैठा है. हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ गुड हेल्थ एंड अ विजन एज अ बायोलॉजिस्ट? प्रदीप सर. सर देखिए, इसमें सिंपल सी एक बात है कि स्ट्रीम फाइंड्स इट्स ओन वे. हम जानते हैं कि नदी की धारा अगर बहती है तो वो रास्ता निकाल लेती है. तो बच्चों को याद कीजिए, हम मना करते थे बट किड्स वर क्वाइट एडमेंट. वो कोई वीडियो गेम या कुछ ना कुछ, एंड दैट वाज अ, आई मस्ट से कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ओके. वो जो की बनी हुई है, उस हैबिट ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से टैकल किया. तो हाँ, स्ट्रेस तो जरूर होता है. वी मस्ट एम्फसाइज कि बच्चा थोड़ा सा घर में भी वॉक करे या थोड़ा सा जितना भी ऑप्शन मिले अवे फ्रॉम दीज डिवाइसेस तो होना ही चाहिए. जी. और जैसे कि मैं भी कई बार बच्चों को बताता हूँ कि यू शुड नॉट बी कंटिन्यूअसली ऑन दैट प्लेटफॉर्म कि ये लगातार 2 घंटे आप ऑन स्क्रीन पर हो. तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा कुछ बैठे बैठे भी फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं. दैट यू शुड लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन, थोड़ा सा गेज आउट करिए या बीच में कुछ और कर लीजिए. बट एज आई सेड, स्ट्रीम ऑलवेज फाइंड्स अ वे. किड्स आर नॉट फेसिंग मच ऑफ अ डिफिकल्टी एज सच. ओके. सर मैं तो ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स जो ज्यादा टीचर्स को भी ज्यादा हो रही है स्क्रीन पे ज्यादा बैठने पर. अभी मेरा कल ही नंबर बढ़ गया सर 0.5. कल मैं सो बच्चे तो चलो गेम्स पहले भी जैसे सरने का खेलते थे, बट आज की डेट में टीचर्स भी काफी इफेक्ट हो रहे हैं काफी स्क्रीन टाइम की वजह से. सो प्रोडक्टिव टाइम जरूर नोट किया जाए कि हाँ ये टाइम हमारा है, बट जो प्रोडक्टिव टाइम है पढ़ने का मुझे लगता है वो हमें यूज ज्यादा करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अदर टाइम्स जो है वो बच्चा कॉपी पेन लेके ही उसको सर करे. प्रॉब्लम एक है ना गगन हाँ. सर, रिक्रिएशन भी मोबाइल और कंप्यूटर से ही होगा बच्चे का आज. तो हाँ देखा बिल्कुल ना, सर. गो आउटसाइड. तो ये भी परेशानी है भाई. बिल्कुल मुझे याद है अरिंदम सर, वो वैशाली से मैं रहता था गुड़गांव की तरफ, सो आई यूज्ड टू टेक द मेट्रो. और एक दिन वापस जाते हुए मैंने वो कैंडी क्रश वाला गेम डाल रखा था, तो मेरा स्टेशन निकल गया अर्जनगढ़. मुझे बड़ी मशक्कत हुई उतनी रात को वापस आने में. मैंने तुरंत उसको डिलीट किया. लेकिन अब देख रहा हूँ कि भाई अब इसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं. I can clearly feel. I can feel that Arindam sir wants to say something regarding mobile laptop screen. Arindam sir. नहीं देखिए, I don't know if you all would remember. I distinctly remember that हम एक मीटिंग में थे और we were discussing this mobile thing in the classroom. क्योंकि मना करने पे भी वो होता था, तो कई टीचर्स होते थे कि वो मोबाइल जमा कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे and all that kind of stuff, and there used to be still leakages in that system. So I think at that point in time I had no idea of this, but I used to say ki we can say no, but kids will find a way to use it. Okay. So how do we as a teacher engage the mobile into the learning, is what we had talked about. Now, it is, what we are discussing is exactly the same discussion when probably let's say my son was growing up. Around that time in early to mid 90s is when this whole multiple cable TV channels and 24-hour TV and all that was becoming absolutely a big threat into a kid's life. And parents used to be very worried that हमारे बच्चे पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, उसका क्या होगा, and stuff like that. So I mean, the TV has given way, because today the TV is also seen in a laptop or a mobile actually, because you go through an OTT platform which you can use in any device actually. So now the fact is that has fundamentally anything changed? Nothing really. You are still looking at the screen. So so many of you would have grown up with television watching, binge watching and stuff like that. I think the only thing as a parent, what you will, if you constantly keep saying कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो जरूर करेंगे. बहुत ज्यादा वो हो जाता है. And I completely agree with what Gagan sir was saying. This is one message that I want to re-emphasize and reinforce as for all the parents who are watching this.
मना करना बहुत आसान काम है. You know, find a creative way. You know, you've got much more experience than that kid. You will have to find your own creative way of making the kid realize कि ये इतना करना सही नहीं है. If you are able to achieve that, you don't have to ever say a no to the kid later on in his life. They will realize, you know. हम लोग जब स्कूल में थे ना तो we used to once in a while drink or smoke. हम तो बदमाश बहुत थे स्कूल में, ऐसे ही थे, which is not a good example to set, but I'm just saying that some of us used to discuss कि हम तो आज ये कर रहे हैं, कल के हमारे बच्चे ऐसे करेंगे तो हम कैसे react करेंगे. तो one of my friends actually used to say कि यार मैं तो बहुत encourage करने वाला हूँ, मैं तो इतना encourage करने वाला हूँ बहुत जल्दी से कि वो उसको use करते हुए bore हो जाए. I'll give you one example from my own parenting life, and you know, please don't repeat it. I don't advise it to be repeated. I used it in my context. It worked. It may or may not necessarily work. So I'm just putting up the disclaimer. You know, when my son was about 1.5 to 2 years old, he had this habit of picking up things, whatever was in his reach, pick up the thing and throw it. तो तोड़फोड़ हो जाता था घर में काफी सारा, because you have to ensure everything is put above his height, you know, where his hands can reach. But फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता था तो वो फेंक देता था घर में, उसको लेके महाभारत हो जाता था. तो one day I was at home and he threw something which was his toy only in front of me. So I just got up, picked up the toy and went back to him and said कि बेटा बहुत अच्छा फेंका तूने, एक बार और फेंक के दिखा मेरे को. तो उसने दोबारा फेंका. फिर मैं वापस गया, उसको पिक करके ले आया और फिर उसको दिया. मैंने बोला कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, अब एक बार और फेंक. तो उसने फेंक दिया. 4, 5, 6 बार हो गया कि वो उसको मजा आ रहा था. धीरे धीरे उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है. This is not a behavior that he is seeing from his father. Right. So he started saying, मैं नहीं फेंकूंगा ये वो, all that. So I said, I insisted. I said, नहीं, you have to throw. Then slowly I moved to a phase where I actually started forcing him कि आज तो तुमको और कुछ मैं करने नहीं दूंगा जब तक तुम ये फेंकोगे नहीं. And for almost 1 hour I sat with him. He used to throw it, I used to pick it up, give it back to him. He did end up crying, you know, which is not what my intent was. But the good part is that though I did not realize it, but I realized later, after that day, there was never ever on a single day that he would have thrown anything. If I would have told him ना कि बेटा ये फेंको मत, तो मैं कितनी बारी बोल लेता, वो फेंकता. He somehow was made to realize that this is not a good thing to do, and this does not have very good consequences. Once that understanding comes, you know, there would be very different ways. And of course, sometimes you feel as a parent later on that you shouldn't have done it. But for his lifetime, I think there are things that one is very clear of. You know, there are so many examples, you know, khana khate hue khana chhod dena. So many different things, you know, you will have to be talking about, and you'll have to find, if you keep saying na कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करना, ऐसे नहीं करते हैं, उसका बहुत effect नहीं होता है. It is all a waste of energy at our end. You will have to find a creative way of making. See, please treat the child as an adult. Problem is हम ना, you know, और इसका एक last example मैं देना चाहता हूँ कि as parents हम लोग क्या होता है कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं और बहुत शुरुआत में जब बात करने लगते हैं, you know, कुछ बोलने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा, you know, softy types होता है and all that. And as parents, we sometimes do a lot of encouragement.
कि वो अगर ठीक से उसको प्रोनाउंस भी कर रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे वाला बोलो, वो बहुत अच्छा सुनने में लगता है। अब बच्चों के मुंह से तो सुनने में वो अच्छा लगता है, बट उसका अगर हैबिट बन गया ना, उसकी पूरी जिंदगी उसके लिए दूसरों के सामने एम्बैरेस होना पड़ेगा। Correct, And sir. he wouldn't like it. So you as a parent have to correct him at that point in time कि इसका pronunciation ऐसा है। तो कोशिश कर, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी इमीडिएटली ठीक हो जाएगा, बट थोड़ा कोशिश कर, और जिस दिन अच्छा हो जाएगा हम लोग मिलके आइसक्रीम खाएंगे। तो एक टारगेट भी हो गया, एक रिवार्ड भी हो गया, कई बार कनेक्ट भी हो गया, और एक सीख भी हो गया कि हाँ ये जो फोनेटिक्स के प्रॉब्लम आता है कई बच्चों में, वो फोनेटिक्स की प्रॉब्लम इज समटाइम्स वेरी वेरी स्ट्रांगली क्रिएटेड बाय द पेरेंट एक्चुअली, और द ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज वो लाड प्यार से उनको लगता है कि ये सब लाड प्यार होता है, बट अल्टीमेटली यू आर नॉट डूइंग समथिंग गुड फॉर द चाइल्ड। अरिंदर सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात ये बताई। सर मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे एक जनरल बात मैं करना चाहता हूँ सर, कि आजकल के पेरेंट्स को मैं सोचता हूँ कि सर पहले 3 वर्ष है ना, मतलब मैं मानता हूँ कि बच्चे को अनकंडीशनल लव करता है पेरेंट, उसके 3 वर्ष के बाद ना सर उसको दे देता है फ्रीडम, जो कि सर मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है, एक फ्रीडम देना आफ्टर 3 इयर्स। तो मेरे हिसाब से पहले 3 वर्ष बच्चे के साथ अनकंडीशनल लव करें, फिर 3 से 12 साल की उम्र में उसको डिसिप्लिन सिखाएं, उसको और डिसिप्लिन में संस्कार इंक्लूडेड है ऑलरेडी, और देन आप 14-15 साल की एज में उसको फ्रीडम दें। हम क्या कर रहे हैं कि अभी उसको फ्रीडम दे देते हैं, फिर बाद में क्या नाम है, बच्चे के साथ हम कनेक्ट छोड़ देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सर ये एक बहुत बड़ा एक बैरियर हम सारे पेरेंट्स कर रहे हैं कि 3-4 साल के बाद उसे फ्री कर देते हैं, अब तू जो मर्जी कर। अब उससे बच्चा ना फिर पेरेंटिंग फिर आप नहीं कर रहे उसकी, फिर पेरेंटिंग उसकी मूवीज कर रही है, पेरेंटिंग उनकी वेब सीरीज कर रही है, पेरेंटिंग कोई दूसरे लोग उसकी पेरेंटिंग कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग सर मैं मानता हूँ एक हमारा परमात्मा का एक वरदान भी है, साथ में हमारी एक अपनी जिम्मेदारी भी है कि हमें उसको करना है कि उसको फ्रीडम कब देनी है और उसको डिसिप्लिन कौन सी उम्र में सिखाना है और कौन सी उम्र में उसको फ्रीडम देनी है। सर एज पर जो मैं मानता हूं कि जो करना चाहिए, आप एग्री करेंगे? This is a very very valid point and a very very important point in fact, कि आज की डेट में I would want to relate this to the problems in adolescence, क्योंकि बच्चा जब adolescent period में रीच करता है 13 साल के आसपास, 16-18 साल तक, till he or she becomes an adult, this phase is becoming very turbulent, and a lot of mental health issues are coming up within the kids, you know, in this phase, with a lot of parents, especially in the urban setting में जहाँ पे आप बहुत nuclear families में, you are very right that you have to have a lot, you have to give a lot of love to the kids when they are small and all that. You know, the age, you know, there are parents who still, I believe there are parents who still use, you know, physical means to control kid, you know, usko chapeta maar diya, ye kar diya, which is not required. I can tell you, I have not ever single day used my hand or any abuse or anything ever in my you know, parenting period. But coming back to this adolescent problem, you know, the challenge is that you're very right. कि parent ना वो क्या करते हैं कि they show very unconditional love. They spoil the child with lot of bad practices because they look very good when you are a kid. अब वही आदत उनके जो है, आप जब उनका एडोलेसेंस हो जाता है, आपको लगता है कि यार ये तो बहुत गंदा हैबिट है। You know, I'll give you a very simple example. कई पेरेंट्स को आज की डेट में मैंने देखा है कि even kids of 7, 8, 10 years, the mother is feeding the child. उनको अपने आप खाना लेने पे सिखाया नहीं या
मतलब स्कूल जाके तो खा लेता है, बट घर में जब भी रहता है तो लाड प्यार से उसको खाना खिला देता है, एंड एज अ हैबिट. Now, when the child goes into an adolescent phase and the mother refuses to do this any further, it creates a lot of mental issues there with the child. कि अब शायद मेरे माँ मेरे को प्यार नहीं करते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता मैं. तो these are very very real issues. डिसिप्लिन करना मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा जरूरत है. Discipline must be taught, must not be taught. It should be, problem है कि हम बच्चों को बोलते हैं यार सुबह तुम क्यों नहीं उठते हो. अब जिस दिन मैं घर पे हूँ मैं तो 11 बजे उठ रहा हूँ. हाँ वो गलत है. अब मैं बोलते रहता हूँ कि भैया तुम सुबह उठ जाओ. This is not discipline. Definitely. Discipline is by what you as a parent. So that is why I say, as a parent, you need to have huge amount of patience, huge amount of discipline, huge amount of focus on your child in terms of observing what they are doing, but not necessarily उसको हर चीज में टोकने की जरूरत नहीं है. But आपको मालूम होना चाहिए कि कर क्या रहा है. And finally, your ability to be able to communicate with the child. Correct, sir. आपको लगता है कि भैया ये मेरा बच्चा जो है ना ये मोबाइल लेके अरे बड़ा तेज है, ये इतना गेम खेल लेता है, देखो ये लेवल तक पहुंच गया, ये हो गया. हम उससे बात करना छोड़ देते हैं. फिर सडनली एक दिन हमको रियलाइज हम करते हैं कि यार इससे बात ही नहीं होती है, ये तो मेरे से बात ही नहीं करते. तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपने तो चाहा ही था कि बात नहीं करें. तो वही तो हुआ है. बिल्कुल. प्रदीप सर हमेशा कहते हैं, मुझे काफी पसंद आई प्रदीप सर की एक बात. अरिंदर सर, प्रदीप सर always said कि screen is always there in front of you. And right now, Pradeep sir, my screen is asking with you extracurricular activities during pandemic. As Pradeep sir, in this tough situation of COVID, our kids are not allowed to go somewhere. हम उनको बहुत देर तक बाहर नहीं भेज सकते, बहुत ज्यादा खुली हवा में उनको नहीं छोड़ सकते. So, since kids do not go out of home, Pradeep sir, how do we engage them in hobbies and extracurricular activities? As you all know, that kids are always demanding कि पापा बाहर लेके चलो, पापा मॉल लेके चलो, हम कब से मूवी देखने नहीं गए. तो प्रदीप सर क्या सजेस्ट करना चाहोगे, ऐसी कैसे करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? सर मैं खुद ही इसी परेशानी को झेल रहा हूँ. खिलौनों का ढेर डबल हो गया है. आज ये देख लिया बच्चे ने ऑनलाइन, पापा इसको मंगा दो, ये आ जाएगा 3 दिन में 4 दिन में. कुछ ना कुछ करना है. बट व्हाट आई फील इज कि जब भी जो भी थोड़ा बहुत भी मौका मिलता है, कभी भी कुछ भी गैप मिलता है, तो आई डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. राइट. खिलाता हूँ जितना हो सकता है. बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है. आई ऑलवेज सी आप पोस्ट भी करते हो बच्चों को कहीं बाहर घुमाने ले गए या फिर गार्डन में ले गए. या अरिंदम सर, कुछ आपके अकॉर्डिंग कुछ और सजेशन सर मिल सकता है इसमें कि बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर कैसे सुधार है? जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला कि बच्चों की मॉरल स्किल्स इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, बच्चे का मूवमेंट नहीं हो पा रहा. क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अरिंदम सर? You see, one is of course whenever it permits, you can go out to open spaces. लोगों को ये थोड़ा सा गलतफहमी भी कई बार हो जाता है कि बाहर जाना मना है, बट वो घूमने चले जाते हैं मॉल में. जी. I would say going to a mall is riskier than going to a park, because you are in an open space and you will have lots of open spaces between people, and don't get into parks which are very crowded, etc. Agar park crowded is obviously then it's not a good thing. But today when I in my locality, when I go out to the park, I see कम लोग आते हैं और वो काफी अच्छा होता है कि वहाँ पे. बट अगेन मौसम जैसे आजकल तो बारिश हो रही है, ये हो रहा है, you can't go out necessarily. At home itself, I think certain good habits you must start building. That मैं सुबह उठ के it is so easy today. I used to find it very challenging to go to this yoga classes, which is actually a walking distance from my home. Okay. But वो सुबह physically जाना पड़ता. Now the good part is that they have that entire sequence now on YouTube available. So आप उस instructor के साथ actually you are getting a private class, because and they have made it into 30 minutes, 60 minutes,
90 minutes, depending on what time you have for the day, and you do a yoga with them. Pull your kids along with it. Make them part of it. You want to do some very basic music classes. There are apps today which allow you to do karaoke, music, etc. जो भी जिसका interest है, you can draw. You can ask them to draw, make them post on social media, build an online exhibition for themselves. जैसे एक आई थिंक गगन सर ही कह रहे थे शुरू में कि टारगेट दे दो बच्चे को. टारगेट इन द सेंस कि इट इज नॉट दैट कि यू विल होल्ड देम रिस्पांसिबल और उसको उल्टा लटका दोगे कि क्यों नहीं हुआ, बट एक गोल सेट कर दो उनके लिए. दे विल नीड दैट हेल्प, बट यू विल हैव टू फाइंड आउट डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट एटसेट्रा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. अगर गेम खेलने में बहुत पसंद है तो आजकल बहुत सारे ऐसे सेशंस होते हैं जहाँ पे देयर आर प्रोग्रामर्स हु टीच यंग किड्स हाउ टू बिल्ड अ वेरी बेसिक गेम. लेट्स से उस पे लगा दो, भले ही वो स्क्रीन पे फिर भी होगा, बट इट इज डाइवर्शन फ्रॉम समथिंग एल्स, एंड somewhere you will have to find out. There are lots of software in today's context which is available, where as a parent you can actually track what kind of activity, online activity that kids are actually doing. See, उसको मना करोगे ना कि ये सीरियल मत देखना या ये वेब सीरीज मत देखना, वो वही देखेंगे. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप देख रहे हैं, तो you will have to build a story around it where they start realizing that this is not, or in a way, उसको distract करो, constructively distract करो to do something much more meaningful. And that is where your creativity as a parent will come in. There is lots of activity that you can do, huge amount of activity. I think there is no dearth of activity. You can bring in lots of doing at home kits which are available. उससे आप उसको अगर कुछ बनाने का शौक है वो करा लो, प्ले करवा लो, कुछ भी करवा लो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी. So Arindam sir, today is Sunday and I can understand कि आप सबका अपना एक फैमिली का भी टाइम होता है आज. But before to end this session, I just want to say I have one big surprise with all of you. So मैं कुछ ग्लिम्स जरूर दिखाऊंगा इस सेशन के एंड में, जिसको देख करके शायद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आएगी. और जिस खुशी के साथ आप आज अभी सेशन में आए थे, उसी खुशी के साथ हम यहाँ पे बाय बाय भी आज बोलेंगे. बट बिफोर दैट आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन अरिंदम सर, अगर आप अलाउ करो तो मैं पूछना चाहूंगा सर. बिल्कुल. सर मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता है कि विदाउट सोशल गैदरिंग्स अरिंदम सर, बच्चा बाहर नहीं जा पा रहा, सोशल की गैदरिंग नहीं है, तो न्यूक्लियर फैमिली में जितने भी पेरेंट्स हैं, हम बच्चों को कैसे डेवलप करें सर, बिना किसी सोशल गैदरिंग के? इतने 2 सालों से बच्चा घर पे है और चाह कर भी हम उसको नहीं इतने मतलब बाहर के माहौल पे नहीं भेज पा रहे हैं, तो उसको लेकर के सर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हाउ कैन वी डेवलप दैट स्किल इन दैट केस? This is a very strong challenge Right. that you will have, and it is not very easy to do. But a couple of examples that I just want to give, जो मैंने देखा है अभी लोग कर रहे हैं और कर पा रहे हैं. Number one is basically create opportunities where in your family, in today's context, you may be having a WhatsApp call or a Zoom call with some of your extended family members or immediate family members or whatever it is. Most of the time I do see parents बोलते हैं कि अरे बच्चे तुम जाओ यहाँ से, अभी हम लोग बड़े बात कर रहे हैं. Correct. Include them in that conversation. Okay. दूसरी साइड में अगर बच्चे हैं तो उनको भी बुलाने को बोलिए, उनको भी थोड़ी देर टाइम दे, छोड़ दीजिए कि वो डिस्कस करे, फैसिलिटेट करिए उस डिस्कशन को. Utilize what best can be done in that kind of a thing. Second, I think encourage ये करिए कि अगर उनके क्लोज कोई, जैसे सोसाइटी में हम लोग कई बार रहते हैं अपार्टमेंट्स में या एक रेजिडेंशियल ब्लॉक में, वहां पे कोई लोकल फ्रेंड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, if their parents are willing
allow a one-to-one interaction, maybe at least 2-3 days in a week, and ask them to follow a little bit of distance and all that kind of stuff. Make sure कि उनके घर में कोई बीमार नहीं है, आपके घर में कोई बीमार नहीं है, obviously that kind of thing. But it is not bad to do that one to one, because in case there is some issue, तो at least trace हो जाता है. I can tell you in my home, for instance, throughout this thing, because my son has a PlayStation at home, we have 3 to 4 kids of his age. I mean, I won't call them any more kids. They are all grown up now, graduates. But they meet, especially on weekends, when all of them have time, because everyone is engaged doing some job or something. They do come physically at our home, and because we have let's say a fairly large space on my living room. And वो 3-4 लोग बैठ के 2-3 घंटे एक साथ कुछ गेम्स खेलते हैं, बातें होते हैं. It helps them tremendously in terms of their unwinding bit of it. You will have to find out opportunities to do so, but virtual space में तो बिल्कुल. सौरभ सर, मैं तो ये कहूंगा कि बल्कि सोशली हमने इस कोरोना पीरियड में काफी एंगेज किया है. आपको पता है ये जो नाम चला था सोशल डिस्टेंसिंग, मैं तो कहता हूँ ये नाम क्यों पड़ा, इट इज फिजिकल डिस्टेंसिंग. हमारा हमने तो बल्कि मैं तो सर उन हमारे चंडीगढ़ में चाचा जी रहते हैं जिनने की, मैंने तो उनसे भी बात करी इस बार कोरोना पीरियड में. तो बेसिकली हमने तो इतने दूर दूर रिश्तेदारों से बात करी है, अमेरिका में बात करी है, बल्कि हमने सोशल एंगेजमेंट हुई है कोरोना पीरियड में. मैंने अपने बच्चों को पंजाब के हमारे रिश्तेदारों से बात कराई, देखो ये हमारे कौन है सारे बच्चे. तो मैं मानता हूं कि हमने इस कोरोना में बल्कि सोशली बच्चों को और एंगेज किया है. पहले नहीं कर पाते थे, पहले हम कहाँ जा पाते थे पंजाब में कहीं जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं. बट आज की डेट में मैंने पूर्वा को अपने सारे रिश्तेदार से वीडियो कॉलिंग करवाई, देखो ये हमारी पुरानी बुआ है, ये हमारे चाचा जी हैं. सो इट इज बेसिकली हमने ये गलत एक तरह से फैलाया कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, इट इज बेसिकली फिजिकल डिस्टेंसिंग. Absolutely. Very well said, Gagan sir. I think this is, and let's see, it is again at the hand of the parent. उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने करवाया, और उसका एक प्री कंडीशन क्या है कि आपको खुद आपके पास नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है. तो अगर एज अ पेरेंट यू स्ट्रगल विथ योर सोशल नेटवर्क, फिर तो आप बच्चों को कैसे सोशल स्किल सिखाओ. प्रदीप सर, आपको सीखने की जरूरत है. प्रदीप सर, मतलब अभी तो जैसे हम पैंडेमिक की डिस्कशन कर रहे हैं, आई थिंक आप लोगों ने भी फील किया होगा. भी अरिंदम सर ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, जो हम सब ने बिफोर पैंडेमिक भी सर फील किया. बहुत बार हम फैमिलीज के साथ जब मिलने गए, सोशल अपने कभी भी गैदरिंग्स पे पहुंचे, तो हमारे बहुत से पेरेंट्स ना, जैसे कोई आया, कोई गेस्ट वहां पे पहुंचा, बेटा जस्ट गो इनसाइड योर रूम एंड फिनिश योर होमवर्क, ठीक है. तो जब बच्चा फैमिली को देख ही नहीं पा रहा है, तो आप उसको क्या फैमिली के स्किल सिखा पाओगे. बच्चा जानता ही नहीं है कि बुआ कौन है, भाई तुम्हारे फूफा कौन है, मामा कौन है. जब वो आ रहे हैं, तुम कह रहे हो बेटा जाके होमवर्क फिनिश करो, और हम बात करें कि हम उनको फैमिली के लिए सिखाएं. तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बच्चा वही देखता है कि पेरेंट क्या संस्कार दे रहा है, पेरेंट क्या कम्युनिकेट कर रहा है उनसे. एम आई राइट प्रदीप सर? एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट इन दिस? बिल्कुल सर. इनफैक्ट इस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज तो आया है, बिकॉज़ बच्चा थोड़ा सा बात करे, एंगेज हो, तो इन अ वे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हुए ही हैं जी एट होम्स. और एज अ बायोलॉजी एजुकेटर मुझे ये एक और चीज लगती है कि हमारे पर्यावरण को कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ है जी. 100% या 50% है ना, बट कुछ ना कुछ फायदा तो. So Pradeep sir, any message to India with this platform Mahamanthal Life? Any message to kids from your side? सर, पढ़ते रहें बच्चे, आगे बढ़ते रहें, घबराना नहीं है, पॉजिटिविटी को ही एम्ब्रेस करना है, क्योंकि डेड ब्लॉक नहीं है. वी स्टिल हैव चांसेस, सॉल्यूशंस निकलेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, एंड वी विल बी एबल टू कम अप एज अ विनर जी. गगन सर, गगन, थैंक यू प्रदीप सर. गगन सर, एनीथिंग, एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड टू इंडिया? बिल्कुल सर, जो प्रदीप सर ने कहा, बिल्कुल हार ना माने, बच्चों को नेवर गिव अप की बात सिखाएं. और क्या नाम है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस कोरोना. कई बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं आज के टाइम पे,
तो उनसे यही कहना चाहूँगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, थोड़ा सा ध्यान रखें पढ़ाई की तरफ। और प्रॉब्लम सिर्फ सर छोटे बच्चों के साथ है मुझे लगता है ऑनलाइन टीचिंग में, वहाँ पर थोड़ा सा हमें उनको एज अ पेरेंट को भी कहना चाहूँगा, एक सुपरवाइजरी का रोल जरूर रखें बच्चों के लिए, बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग है तो उनका भी एक रोल बहुत जरूरी है। बहुत हम फेस कर रहे हैं, इवैल्यूएशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ जैसे, तो बच्चे कैमरा बंद कर देते हैं और पता नहीं क्या पीछे चीटिंग करके कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पेरेंट की भी हमारी यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि वो भी एक एज अ रोल रखें टीचिंग के समय। बाकी सर यही जी। अरिंदम सर, गगन सर एंड प्रदीप सर, मैं आपको बताऊं, मेरी डॉटर इस वक्त 4th क्लास में है। मॉर्निंग में उसकी ईवीएस की क्लास होती है सर, टैगोर इंटरनेशनल की टीचर क्लास लेने के लिए आती है सुबह 7 बजे। एंड सर मैं आपको बताऊं, एज अ टीचर मैं रोज देखता हूँ, शी इज लिटरली वेटिंग फॉर दैट ईवीएस क्लास। एंड मैं उस टीचर को पढ़ाते हुए देखता हूँ और मैं फील करता हूँ कि शायद टीचर अगर चाहे ना तो ऑनलाइन ऑफलाइन का बिल्कुल भी डिफरेंस आने नहीं दे सकते बच्चे को। एंड काफी खुशी होती है अरिंदम सर कि जब बच्चा हमसे कहता है कि सर हमें बिल्कुल कमी महसूस नहीं हो रही आज ऑफलाइन की, कि आप हमारे साथ यहाँ ऑनलाइन भी इतना अच्छा कर पा रहे हो। सो मैं देखता हूँ प्रदीप सर को कितना बच्चा पसंद कर रहा है, और मैं सारे कंट्री के एजुकेटर्स की मेहनत, जो उनके हार्डवर्क है, मतलब स्कूल टीचर्स हो, गगन सर आप स्कूल फ्रेटर्निटी में पढ़ा रहे हो, आपने इतने सारे स्कूल टीचर्स के साथ आप पढ़ा रहे हो, तो मुझे लगता है हर एक टीचर अपने एंड से अपनी पूरी बेस्ट एफर्ट दे रहा है। एंड मैं उन सारे एफर्ट्स को यहाँ पे नमस्कार कहना चाहूंगा। हमारे टीचर्स मेहनत से पढ़ा रहे हैं और इन टफ सिचुएशन में भी उन्होंने सिलेबस को और बच्चे को अपना बेस्ट ही दिया है, और बच्चों ने भी बहुत एफर्ट्स के साथ पढ़ाई करी। एंड अरिंदम सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम हियर। सेशन के साथ साथ कुछ मैसेज इंडिया को देना चाहते हैं अरिंदम सर? कोई एनी सजेशन टू किड्स फ्रॉम योर साइड? Kids तो नहीं, I will still want to give a message for the parents only. Yes. That I think you are blessed to be a parent. Yeah. This is one of the best things that can happen to a person's life. Correct, sir. Don't fritter it away. Be engaged with he or she is part of you essentially. Right. अब उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे तो किसको प्रायोरिटी देंगे? मुझे कई बार बहुत ताज्जुब होता है जब लोग कहते हैं कि बच्चों को मैं कैसे टाइम दूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जी भैया, बच्चे तो आप ही के हैं और आप ही को टाइम देना पड़ेगा और आप ही को टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि उससे छुटकारा नहीं है। ये किसी बॉस ने आपको टास्क नहीं दिया है, ये टास्क आपने खुद अपने को दिया है। तो खुद ने अगर ये डिसाइड किया है तो शिकायत मत करो किसी और। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो बहुत ही अच्छा लगा सर आप लोगों के सजेशंस, डेफिनेटली हमारे बहुत सारे पेरेंट्स जो सुनेंगे। एंड यू नो सर, अरिंदम सर, इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले आई हैव मोर देन 40 मैसेजेस इन माय मोबाइल कि बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ के जुड़ना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि अरिंदम सर आ रहे हैं, बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने कहा डेफिनेटली आप पूछिए, आई विल अपलोड दिस सेशन विद इन अ कपल ऑफ आवर्स, तो जहां पर आप डायरेक्टली अब सेशन को वॉच करिएगा और डेफिनेटली कुछ हो तो सर से जरूर कोऑर्डिनेट करिएगा, क्योंकि दे वर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मतलब मैं तो खुश हो गया, मैंने देखा अरिंदम सर आ रहे हैं। सौरभ सर से तो बात होती रहती, गगन सर से भी होती है। मैंने कहा जी आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब बहुत बढ़िया इंटरेक्शन जी। और सर प्रदीप सर, गगन सर, अरिंदम सर, यही एक हमारी सोच थी कि कम से कम वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों में गैप्स ना आए, हम लोग कम से कम कनेक्टेड रहे आपस में। हम एक बहुत मेहनत वाली टीम के साथ हम सब ने काम किया है, हमने अरिंदम सर के अंडर में बहुत कुछ सीखा है, और हम चाहते हैं कि सर ने हमें जो सिखाया वो हम कहीं ना कहीं अपने लेवल पे जो भी हो सके हम बच्चों के साथ वो चीज शेयर करें, और पेरेंट्स उस चीज को फील करें कि एटलीस्ट हमारे बच्चों को एजुकेशन में कहीं पर भी हम कमी ना आने दें। कंट्री के किसी बच्चे को एटलीस्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में जितना भी हो सके टीचर की तरफ से कोई शिकायत ना आने पाए। वही इसी सोच के साथ हमने महामंथन शुरू किया है सर। और हम सब ये चाहते हैं कि वीक में कभी भी जिसके पास जो भी टाइम हो, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, वो यहाँ पर आकर के अपने थॉट्स को शेयर करें। सो अगर आप परमिट करो तो मैं कुछ आपके लिए सरप्राइज शो करना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दें। So in between, I want to say happy Friendship Day, Arindam sir, Gagan sir, and Pradeep sir. And I have something for all of you. I want to show something. So यहाँ पर मैं बहुत सारी यहाँ पे जो इफेक्टिव पेरेंटिंग डिस्कस कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं अरिंदम सर अपने बेटे के साथ हैं, गगन सर अपनी पूर्वा बेटी के साथ हैं, प्रदीप सर हमारे अपने बच्चों के साथ हैं, प्रदीप सर अपनी किड्स के साथ है, और मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। और मुझे लगता है कि हम हमेशा जब भी टाइम होता है अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ
अपना मोमेंट जरूर स्पेंड करते हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं. And thanks a lot once again, Arindam sir, for giving your valuable thoughts. And so your session, your words are very important for us as a parent. And Gagan sir, thank you for coming. Pradeep sir, thank you a lot कि आप busy schedule में आए यहाँ पे. For inviting me for this session. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you sir. Thank you. एक मिनट, हाँ, बहुत बढ़िया सर. Uh, रिकॉर्ड